اب آپ کو بتائیں گے کہ اسلام آباد کے تجارتی مرکز G9 میں آتش زدگی کا واقعہ، دکانوں میں لگنے والی آگ پر قابو پا لیا گیا ہے۔ آگ کیسے لگی اور کتنی دیر میں اس پر قابو پایا گیا، یہ جانیں گے اپنے نمائندے شہزاد علی جو اس وقت موقع پر موجود ہے۔ شہزاد، کیا ڈیٹیلز ہیں آپ کے پاس؟ میں اس وقت موجود ہوں اسلام آباد کے تجارتی مرکز کراچی کمپنی میں۔ اب سے تھوڑی دیر قبل ایک پلازا کے اندر اچانک آگ بھڑک اٹھی۔ اس وقت کیا سچویشن ہے، میرے ساتھ موجود ہیں ڈی جی ریسکیو اینڈ ایمرجنسی سروسز CDA ڈاکٹر عبدالرحمان صاحب، جی انہیں سے بات کرتے ہیں۔ ہمیں 12:53 پہ کال ریسیو ہوئی اور پہلی ہماری وہیکل جو ہے 7 منٹ کے ریسپانس ٹائم کے ساتھ انسیڈنٹ سائٹ پہ موجود تھی اور 3 ڈائریکشنز کے ساتھ جو ہے وہ فائر فائٹنگ کی گئی سین اسسمنٹ کرنے کے بعد، اور الحمدللہ ہم نے اس وقت جو ہے وہ فائر کنٹرول کر لی ہے۔ کولنگ پروسیس چل رہا ہے اور کوئی اس میں جانی نقصان نہیں ہوا۔ یہاں پر ریسکیو اور پولیس نے جو ہے وہ قیمتی جانوں کو بچانے کے ساتھ ساتھ جو قیمتی املاک تھی تاجروں کی انہیں بھی محفوظ بنا دیا ہے۔ جی یار یہ کیا ہے؟ صحیح، ٹھیک، آپ کا بہت شکریہ۔ بریکنگ نیوز سے آپ کو اچرا میں نجی ٹیوشن سینٹر میں پڑھنے جانے والی بچی کی موت، بچی کو قتل کیا گیا۔ اہل خانہ کا دعویٰ، اہل خانہ کے مطابق 10 سال کی نعیمہ گھر سے ٹیوشن پڑھنے گئی، فون آنے پر وہاں پہنچے تو بچی مردہ حالت میں پائی گئی۔ بچی کے گلے پر رسی کے واضح نشانات موجود ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کریں اہم خبر سے، اچرا میں نجی ٹیوشن سینٹر میں پڑھنے جانے والی بچی کی موت، بچی کو قتل کیا گیا۔ اہل خانہ کا دعویٰ ہے، اہل خانہ کے مطابق 10 سال کی نعیمہ گھر سے ٹیوشن سینٹر پڑھنے گئی تو فون آنے پر وہاں پہنچے تو بچی مردہ حالت میں پائی گئی۔ فہد بھٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں، فہد بھٹی سے بھی بات کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن ابھی آپ کو بتائیں کہ اچرا میں نجی ٹیوشن سینٹر میں پڑھنے جانے والی بچی کی موت، بچی کو قتل کیا گیا۔ اہل خانہ کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ اہل خانہ کے مطابق 10 سال کی نعیمہ گھر سے ٹیوشن پڑھنے گئی، فون آنے پر وہاں پہنچی تو بچی مردہ حالت میں پائی گئی۔ بچی کے گلے پر رسی کے واضح نشانات بھی موجود تھے۔ ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے اہم اعلان سے۔ دہشت گردی کے پیچھے مشرقی ہمسائے کا ہاتھ، دہشت گردوں کو فنڈنگ اور اسلحہ فراہم کر رہا ہے۔ سیاسی اور عسکری قیادت مل کر دہشت گردی کا خاتمہ کرے گی۔ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کا 2 ٹوک اعلان۔ کوئٹہ میں صوبائی ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بلوچستان میں بڑے سنگین واقعات ہوئے، پولیس، فوجی جوانوں، شہریوں کو شہید کیا گیا۔ افغانستان سے دہشت گرد KP میں حملہ آور ہوتے ہیں، آخری فسادی دہشت گرد کے خاتمے تک جنگ جاری رہے گی، تمام وسائل استعمال کریں گے۔ پاکستان کی دنیا میں عزت دشمنوں کو ہضم نہیں ہو رہی۔ 4 دنوں میں بڑے سنگین واقعات ہوئے جس کے نتیجے میں پولیس کے جوان، فوجی بھائی اور شہری شہید ہو گئے۔ 54 دہشت گردوں کو جہنم حاصل کیا گیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس فتنے میں ہمارے مشرقی ہمسائے کا بھرپور ہاتھ ہے۔ وہ پیسہ ان دہشت گردوں کو، ان کی تنظیموں کو مہیا کر رہے ہیں، اسلحہ مہیا کر رہے ہیں۔ افغانستان میں یہ دہشت گرد مل کر حملہ آور ہوتے ہیں KP میں، اسی طریقے سے اور کچھ خارجی ہاتھ ہے۔ ایک بات طے ہے، پولیٹیکل لیڈرشپ اور ملٹری لیڈرشپ کا یہ یکسوئی کے ساتھ فیصلہ ہے کہ انشاءاللہ ہم نے مل کر دہشت گردی کا خاتمہ کرنا ہے۔ یہ فیصلہ قوم کو سنانا چاہتا ہوں اپنی طرف سے، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی طرف سے اور بلوچستان کی حکومت کی طرف سے، کہ ہم مل کر دن رات اس فتنے کا خاتمہ کرنے کے لیے پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور یہ جنگ انشاءاللہ اس وقت تک جاری رہے گی جب تک کہ پاکستان میں آخری فسادی دہشت گرد کا خاتمہ نہیں ہو جاتا۔ پوری قوم کا یہ فیصلہ ہے اور پوری قوم افواج پاکستان لا انفورسنگ ایجنسی کے ساتھ پوری طرح کھڑی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت کوئٹہ میں بلوچستان ایپیکس کمیٹی کا اجلاس، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے بھی اجلاس میں شرکت کی۔ بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ، گورنر، قانون نافذ کرنے والے اداروں کے سربراہان شریک ہوئے۔ وفاقی وزراء عطا اللہ تارڑ، احد چیمہ اور وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ نے بھی شرکت کی۔ اجلاس کے بعد وزیر اعظم اسلام آباد روانہ ہو گئے۔ اب آپ کو بتائیں کہ پنجاب میں آنے والے دنوں میں شدید گرمی اور بارش کا امکان ہے۔ ہیٹ ویو اور اربن فلڈنگ کا خدشہ، حکومت سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا اجلاس سے خطاب، کہا کہ نہیں چاہتے کہ نااہلی سے ایک بھی جان جائے، نام نہیں لینا چاہتی، لیکن کچھ صوبوں میں بارش کے بعد پانی کھڑا ہی رہتا ہے۔ ہم نے گزشتہ سیلاب سے سیکھنے کی کوشش کی، ڈرین سسٹم بہتر بنانے پر خطیر رقم خرچ کی۔
क्लाइमेट चेंज एक हकीकत है। इस साल बारिशें कम होंगी। जो हीट वेव है वो ना सिर्फ ये कि बहुत इंटेंसिफाई होगी बल्कि प्रोलॉन्ग्ड हीट वेव होगी। कुछ तो एरियाज में 52 और 55 डिग्री के दरमियान जो है वो खदशा है कि टेम्परेचर सोर करेंगे। रेनफॉल है मानसून में वो लोकलाइज्ड होगी, स्पेशली जो पूरी पोटोहार की बेल्ट है क्लाउड बर्स्ट की सूरत में अर्बन फ्लडिंग है उसका भी खदशा है। और सूबों की मैं नाम नहीं लेना चाहती किसी सूबे का, बारिश होती है तो वहां पर पानी जो है वो खड़ा रहता है। अरबों रुपया आपने लगाया है, सीवेज और ड्रेनेज के इश्यूज थे उनको हमने पंजाब डेवलपमेंट प्लान में पूरा दुरुस्त किया है। जलालपुर पीरवाला में 7 किलोमीटर लंबा बंद जो है वो तकरीबन वहां पर ऑलमोस्ट तैयार है। पिछला जो हमारा साल था बहुत बड़ा फ्लड आया, हमने कोशिश ये की जो लर्निंग एक कर्व था हमारा उसको हम स्ट्रेंथन करें। ये नहीं हुआ कि कोई भी एक भी जिंदगी जाया हुई हो गवर्नमेंट की नाअहली की वजह से या गवर्नमेंट क्योंकि रेडी नहीं थी। कुछ डेथ्स हुई हैं जिसकी वजह से हमने पहले दिन से ये कोशिश की है कि हम उन तमाम जगहों को सिक्योर करें जहां पे पानी आने का खदशा होता है। और कतरी वज़ीर आज़म ईरान अमरीका कशीदगी के खात्मे के लिए एक बार फिर से मुतहर्रिक। शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी के ईरान, सऊदी अरब और ओमान के वज़ीर ख़ारिजा से राबते। कतरी वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक अब्बास इराक़ची से गुफ्तगू में आबने हुर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों पर हमले की शदीद मज़म्मत की। कशीदगी कम करने और जाम मुआहदे तक पहुँचने पर जोर दिया गया। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा से अमरीका और ईरान के दरमियान जारी कशीदगी पर गुफ्तगू हुई। मीरपुर खास में अफसोसनाक वाक़या पेश आया। जाली आमिल की साथी समेत 2 कम उम्र लड़कियों से मुबैना ज्यादती, एक दम तोड़ गई, दूसरी की हालत तशवीशनाक है। पुलिस के मुताबिक 14 साल की लड़की नाराज मां को मनाने के लिए जाली आमिल के पास गई थी। मुलजिम गिरफ्तार, साथी की तलाश जारी है। मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे बिलाल महमूद ने हमें ज्वाइन किया है। बिलाल बताएगा पुलिस क्या कहती है इस हवाले से। जी बिल्कुल, ये तहसील कोट गुलाम मोहम्मद में जाली आमिल की जानिब से साथी है, एक साथी के हमरा 2 कम उम्र लड़कियों से मुबैना ज्यादती का वाकया पेश आया है, जिसके बाइस एक लड़की 14 साल जो बच्ची है वो जहाँ बहक हो गई है, जबकि दूसरी की हालत तशवीशनाक थी जिसे हैदराबाद मुंतकिल किया गया। जबकि इस हवाले से हमारी जब पुलिस से बात हुई तो पुलिस के मुताबिक जो वर्षा की जानिब से बयानात रिकॉर्ड करवाए गए थे उसके मुताबिक जो है वो बच्चियों को पहले नशावर चीज दी गई जाली आमिल की जानिब से और उसके बाद जो है उन्हें ज्यादती का निशाना बनाया गया है। जबकि वर्षा से हमारी बात हुई तो वर्षा के मुताबिक जो बच्ची है, जो 14 साल बच्ची जहाँ बहक हुई है, जो उसकी वालदा जो है नाराज होकर घर से चली गई थी, उसको राजी करने के लिए, मनाने के लिए वो जाली आमिल के पास गई थी कि किसी तरह जो है वालदा को मनाकर वापस घर लाया जा सके, जिसके बाद आमिल ने जो है अपने साथी के हमरा मिलकर उसे ज्यादती का निशाना बनाया है। इस मौके पर हमारी बिलाल, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया। अभी आपको अपडेट करेंगे मशरकी लंदन के इलाके लीटन में मस्जिद से बाहर आने वाले शहरी पर मुबैना हमला। मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने सफेद फॉर्म शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। मजीद तफसीला जानेंगे अपने नुमाइंदे अजहर जावेद से जो कि लंदन से हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अजहर साहब बताएगा क्या मामला ये? जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाकया मशरक के लंदन का इलाका लेटन जहाँ पर पाकिस्तानियों की अक्सरियत है और ये शख्स जिस पर हमला किया गया वो भी पाकिस्तानी है। ये वाकया जब मस्जिद से नमाज पढ़ के नमाजी निकल रहे थे तो एक सफेद फॉर्म शख्स जिसकी उम्र 42 साल बताई जाती है उसने हमला कर दिया जो मुसलमान बाहर आ रहे थे। उसके बाद नतीजे में ये इस पाकिस्तानी ने इसको कन्फ्रंट करने की कोशिश की और उस शख्स ने इस पर हमला करके इसको जख्मी कर दिया। पुलिस ने 42 साल शख्स को अपनी हिरासत में लिया और उससे तफ्तीश की जा रही है। यहाँ पर मुकामी कम्युनिटी जिसमें पाकिस्तानी और कश्मीरी बड़ी तादाद में है, इस तरह के वाकयात पर तशवीश का इजहार कर रही है, लेकिन पुलिस की बरवक्त कार्रवाई से वो 42 साल शख्स को हिरासत में ले लिया गया और इसके मुहर्रिकात को जानने की कोशिश की जा रही है। जी ठीक है, ब्यूरो चीफ लंदन अजहर जावेद हमारे साथ मौजूद थे, बेहद शुक्रिया डिटेल्स के लिए। बहरिया टाउन के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के लिए रकम गैर कानूनी तरीके से बाहर भिजवाने का केस जुर्म साबित होने पर इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने 3 मुल्जिमान को सजा सुना दी है। बहरिया टाउन के वाइस चीफ एग्जीक्यूटिव समेत तीनों मुल्जिमान को 1-1 साल कैद की सजा सुनाई गई। 5-5 लाख रुपए जुर्माने का भी हुक्म दिया गया है। मुल्जिमान पर बहरिया टाउन के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के लिए हवाला हुंडी के जरिए रकम बैरून मुल्क भिजवाने का इल्जाम था। समात एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नसर मेनुल्लाह बलोच ने की है।
आगे बढ़ेंगे। भारत में मॉनसून की बारिशों ने तबाही मचा दी है। हलाकतों की तादाद 24 हो गई है। 13 महाराष्ट्र में हलाक हुए हैं, जबकि मुंबई, नई दिल्ली, पुणे और दीगर कई शहरों में सड़कें तालाब बन गई है। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। रायगढ़ में सैलाबी रैला LPG सिलेंडर प्लांट में दाखिल हो गया है, जिससे 3000 से ज़ायद सिलेंडर बह गए हैं। मशरिक़ वस्ता में फिर जंग के शोले भड़क उठे हैं। अमेरिका के ईरान पर 2 बार हमले हुए हैं। पहले रोज 80 मकामात पर बमबारी की गई है। दूसरे रोज 90 मकामात को निशाना बनाया गया है। 2 रोज के दौरान 14 ईरानी शहीद हुए हैं। सेंटकॉम के मुताबिक ईरान के एयर डिफेंस और एंटी शिप मिसाइल तंसीबात को निशाना बनाया गया। बंदर अब्बास, चाबहार और सेरिक में भी हदफ हासिल किए गए हैं। बूशहर, हरमज़गान और जजीरा अबू मूसा में बमबारी की गई है। अमरीकी हमलों में अस्पताल, पुल, रेलवे और बिजली तंसीबात को निशाना बनाया गया। ईरान की तिजारती कश्तियों और टेली कम्युनिकेशन टावर्स पर भी बमबारी की गई है, जबकि ईरान ने भी हमलों पर भरपूर जवाब दिया है। खित्ते में अमरीकी तंसीबात को निशाना बनाया गया। 85 अहदाफ पर ड्रोन्स और मिसाइल दागे गए। बहरीन में अमरीकी 5th फ्लीट पर हमला किया गया। पोर्ट सलमान और शेख ईसा एयरबेस को निशाना बनाया गया। ईरान ने कुवैत में भी अमरीकी तंसीबात को निशाना बनाया। कुवैत की अल सालिम एयर बेस पर भी हमला किया गया है। इसके अलावा अमेरिका के महंगे तरीन MQ-9 ड्रोन को भी तबाह किया गया है। एक और अहम मामले की बात, मशरिक़ वस्ता में कशीदगी फिर बढ़ने लगी है। अमेरिका के मुसलसल दूसरे रोज भी ईरान पर फिजाई हमले। 2 रोज में शहदा की तादाद 14 हो गई। दूसरे रोज सेरेक, बंदर अब्बास, चाबहार और कनारिक में बमबारी हुई। बूशहर, हरमज़गान और जजीरा अबू मूसा में कई मकामात को निशाना बनाया गया। मशहद में 2 पुलों को तबाह कर दिया गया। तेहरान तक ट्रेन सर्विस मुअत्तल। पासदाराने इनकलाब का जवाबी वार। कुवैत और बहरीन में 3 अमरीकी अड्डों को निशाना बनाने का दावा किया। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक बूशहर एटमी बिजली घर के बैरूनी हिस्से को भी निशाना बनाया गया। में जंग की आग फिर भड़क उठी। अमेरिका के मुसलसल दूसरे रोज ईरान पर तबाहकुन हमले, 90 मकामात पर बमबारी। ईरान की भी जवाबी कार्रवाई की। सेंटकॉम के मुताबिक सिरेक, बंदर अब्बास, चाबहार और कनार्क पर बड़े पैमाने पर हमले किए। बूशहर, हरमज़गान और जजीरा अबू मूसा पर बारूद की बरसात की गई। पासदाराने इनकलाब के साहिली रडार सिस्टम, एंटी शिप मिसाइल तंसीबात और फिजाई दिफाई निजाम को निशाना बनाया गया। अस्पताल, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर और बिजली तंसीबात पर भी हमले किए गए। सीस्तान में एयरपोर्ट के करीब भी मिसाइल दाग दिए। अमेरिकी फौज का कहना है तिजारती जहाजों पर हमले करके ईरान ने जहाज रानी की आजादी को खतरे में डाला। ने भी अमेरिकी हमलों के जवाब में भरपूर ताकत का मुजाहरा किया। कुवैत और बहरीन में 4 अमेरिकी अड्डों को निशाना बनाने का दावा। पासदाराने इनकलाब ने खबरदार किया कि अगर अमेरिका ने दोबारा हमले किए तो रद्द अमल खित्ते में मौजूद दीगर अमेरिकी अड्डों तक भी फैल जाएगा। ईरान के हमलों के बाद बहरीन और कुवैत में कई मकामात पर सायरन बज उठे। कतर में मोबाइल फोन्स पर बड़े खतरे का इंतबाह जारी किया गया, जो बाद में वापस ले लिया गया।